Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, आज हम चैप्टर 14 इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको आंसर कैसे करना है. चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, What were 3 documents issued by Britain and France during World War I which caused the latter trouble in Palestine? Why were these documents issued? Now, again, the same strategy. हम पहले अपने important points करेंगे. 3 documents by Britain and France during World War I, because that indicates या वो आपको बताते हैं कि कौन से साल थे वो, which caused the later trouble, जिसकी वजह से बाद में भी पैलेस्टीन में ट्रबल हुई. And why were those documents issued? उनको इशू किया क्यों गया था? सबसे पहले देखते हैं कि वो 3 कौन से हैं. मैकमोहन लेटर्स in 1915, Sykes-Picot in 1916 and then Balfour Declaration in 1917. अब ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों और इशू क्यों किए गए? उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 थी, ब्रिटेन को हेल्प चाहिए थी, तो इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम हेल्प टू बी एबल टू विन द वॉर, और वो वॉर जीतने के लिए उसको जितनी हेल्प चाहिए थी उसके लिए उसने तीनों साइड से हेल्प लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए. वो कैसे और इन्होंने हेल्प कैसे की? अब मैकमोहन लेटर्स जो 1915 में आए उसमें ब्रिटेन प्रॉमिस्ड एन अरब इंडिपेंडेंट स्टेट इन रिटर्न फॉर द हेल्प इन द वॉर. अब इफ यू रिमेंबर, एज वी डिस्कस्ड, दैट पैलेस्टीन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, प्लस उसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो अरब्स की थी. तो जब मैक्सिमम पॉपुलेशन अरब्स की थी तो अरब की हेल्प के लिए उन्होंने उनको इन रिटर्न ये कहा जी कि हम आपको आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट दे देंगे जब वॉर खत्म हो जाएगी. सो दे डिड व्हाट? दे पैसिफाइड अरब्स, उनको तसल्ली दी और उनसे हेल्प ली. Sykes-Picot Agreement 1916, an agreement where Britain and France decided to share the area amongst them after the war. अब since they were allies, what they did was कि they signed an agreement in which they decided कि ये land, which is Palestine, हम आपस में divide कर लेंगे after the war. The third was Balfour Declaration 1917. अब Palestine में apart from Christians, Jews भी रहा करते थे. So USA, for the interest of its people, for the interest of Jews, they pressurized Britain and the Britain Foreign Secretary Balfour. He promised the land to be a home for Jews. उसने क्या किया? उसने इस डेक्लेरेशन में ये प्रॉमिस कर दिया कि ये लैंड विल बी अ होमलैंड फॉर ज्यूज. अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स उस वक्त इसलिए काम आए क्योंकि 1918 में व्हेन ब्रिटेन वॉन, they got help from all these people in all these nations. Question 2. Why is Jerusalem such an emotional issue for both sides? अब both sides यहाँ पे जो रेफर कर रहा है, important point, Jerusalem, emotional issue for both sides. अब both sides में Jerusalem or Baitul Maqdis holds immense importance for both sides because of religious association of 3 religions to the place. अब इस जगह से जो 3 religions की association है, if you remember we discussed, for Muslims it has Masjid Aqsa, right? For Jews, the Temple of Solomon. And for Christians, it was a place where Christ was crucified. For them, it is important because it was where the Christ was crucified. अब इन religious reasons की वजह से वहां पे जितने लोग थे उन सब की एक इमोशनल अटैचमेंट थी, बिकॉज रिलीजन इज एन इमोशनल इशू. क्वेश्चन नंबर 3. What do you think are the common factors behind the ongoing Middle East conflicts? The important reason? Common factors for the ongoing Middle East conflicts. अब मिडल ईस्ट की बात करते हुए गल्फ रीजन की बात करते हैं. इफ यू रिमेंबर, the Gulf region, which had UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Iraq,
all these countries they formed the Gulf region. And as we discussed कि पहले इस एरिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी because before 20th century it was a barren land, but after 20th century oil was found here, and since oil was found, these oil resources proved to be fatally important for this region. ये इतनी इंपॉर्टेंट थी क्यों? क्योंकि उसका एडवांटेज ये था एनर्जी रिसोर्स आ गई थी इस रीजन में, और वो भी इतनी ज्यादा मिकदार में कि ना सिर्फ वो अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, वो बाकी मुल्कों में भी भेज सकते थे. एंड देन सिंस एनर्जी रिसोर्स इट गेव पावर. सो द डिसएडवांटेज वाज दैट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्स, इस एनर्जी रिसोर्स की वजह से इट अट्रैक्टेड अदर कंट्रीज हु वुड वांट टू हैव द पावर टू कंट्रोल एनर्जी. अब इसने उन मुल्कों को अपनी तरफ खींचा जो इस एनर्जी रिसोर्स के ऊपर अपना कब्जा चाहते थे, बिकॉज ये कब्जा मिलता तो ऑब्वियसली ऑयल रिसोर्स, पैसा आएगा, बेचेंगे, दूसरे मुल्कों में भेजेंगे, और सबसे बड़ी बात इट गेव पावर टू दैट कंट्री विच हैड दोज रिजर्व्स अंडर इट. एंड एज अ रिजल्ट इस सबसे क्या होना था? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी. इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर मनी. मोर मनी मीन्स मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. More industrialization means developing country or forming into a developed country. Question number 4. What were the results of Arab-Israeli wars of 1948, 56, 67 and 73? So the important points, these 4 years and the results. And they were what? They were Arab-Israeli wars. 1948 में सबसे पहले क्या हुआ? November 1947 में थोड़ा बैकलॉग देखते हैं, थोड़ी पिछली उसकी वजह देखते हैं. नवंबर 1947 में UN passed a resolution. According to this resolution, it divided Palestine into Arab and Jews areas. अब 1948 में the resolution expired and it was declared the land of Israel. अब ये declaration in the first place क्यों unjustified थी? क्योंकि पैलेस्टीन में सिर्फ 7 to 8% ज्यूज थे, रेस्ट वर अरब्स और क्रिश्चियंस, जिसमें मेजॉरिटी वाज अरब्स. सो एज अ रिजल्ट द ज्यूज टुक होल्ड, दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स. वो फैलते गए उस एरिया में, अपनी जगह बनाते गए, और अपनी जगह बनाने के लिए जो फलस्तीनी थे उनकी जगह, उनके घर वो गिराते गए. सो 1948 में दे डिक्लेयर्ड इट एज लैंड ऑफ इजराइल. 56 सुएज क्या था? इट वाज अ वॉर बट इट occurred because of water. वो कैसे? Invasion of Egypt by Israel. Israel ने इजिप्ट को इन्वेड कर दिया to regain control over Suez Canal. इजिप्ट के साथ एक सुएज कैनाल थी जिससे पानी जाता था और भी मुल्कों में, और प्लस वहां के जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, तो यूरोप में भी वहां से पानी यूज हो रहा था. So Israel to get hold into power, obviously it was the second Arab-Israeli war. इजिप्ट एक अरब कंट्री है, इजराइल ने उस पर वॉर कर दी टू जस्ट गेन कंट्रोल एंड जस्ट स्टॉप द नेशनलाइजेशन एंड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, विच एट द एंड डिड नॉट अकर, एंड दे हैड टू विड्रॉ. द इजराइल हैड टू विड्रॉ. इजराइल को वहां से वापस आना पड़ा. 1967 a 6-day war. It was the third Arab-Israeli war. इसमें इजराइल was fighting against Jordan, Syria and Egypt. अब Jordan, Syria and Egypt, they were Arab countries again, and Israel attacked them. At the end, the result was that they had to come to agreement for a ceasefire. उनको अपने हथियार फेंकने पड़े और वॉर खत्म करनी पड़ी. 1973, Yom Kippur War, or the fourth Arab-Israeli war as it is known. 73 में दोबारा Arab countries led by Egypt and Syria. अब जब यहाँ पे इजिप्ट को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जॉर्डन को भी, सीरिया को भी, क्योंकि इजराइली आर्मीज वर वेरी फिरोशियस. वो बहुत भारी थे उन लोगों पे, और उन लोगों ने सारा जो एयरफोर्स था उनका, इजिप्शियन आर्मी का, वो तबाह कर दिया था. सो सीज फायर से इजिप्ट को फायदा तो हुआ कि ऑब्वियसली इजराइल हैड टू विड्रॉ, कि इजराइल को वापस जाना पड़ा. लेकिन 1973 में इजिप्ट एंड सीरिया वर अनहैप्पी विद व्हाट वाज हैपनिंग टू एन अदर अरब स्टेट, पैलेस्टीन, because they were Arab states themselves. उनको इस बात पे गुस्सा था कि एक और अरब स्टेट के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यूज वहां फैलते जा रहे थे, तो वहां के जो लोकल लोग थे, जो
आदमी थे, जो अरब्स थे, उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा था, बहुत ज़्यादा किलिंग्स होती थी. सो व्हेन दे अटैक्ड दे लॉस्ट टू इजराइलीज. इससे फर्दर डैमेज हुआ. इजिप्ट और सीरिया हार गया और जो अल्टीमेट नुकसान था वो वहाँ के आम लोगों ने उठाया क्योंकि बहुत सारी किलिंग्स हुई. सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज.